अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद आलम, SMB Qaid Azam Higher Secondary School, Dastana Channo. I am lecturer of bio. Today I deliver you lecture about the Nedam theory. The main topic is Nedam theory. Before the starting of lecture of Nedam theory, I explain some other scientists who introduce the origin of life. Number one, Aristotle. Aristotle introduced abiogenesis theory. And second, Reddy explain the theory of biogenesis. Between two theories, men dispute that Aristotle says all living organisms create or produce from non-living. And Reddy said all living organisms produce from living things. So those theories explain two scientists, Aristotle and Reddy. And other scientist Nedam explain a Nedam experiment. This experiment favor to the theory of Aristotle. Nedam says all living organisms produce from non-living things, but Reddy is wrong. Reddy theory is wrong. That Reddy says that all living organisms produce living organisms. So Nedam supported the theory of abiogenesis but not a biogenesis. So Nedam, during the experiment in procedure, Nedam boiled meat in water, poured this gray in bottles and sealed their mouth with cork. नेदम ने क्या किया कि गोश्त के टुकड़ों को बॉटल्स के अंदर रख दिया और उनके साथ वाटर मिक्स कर दिया। फिर उसने उसको कार्क से क्लोज कर दिया। उसको क्या किया? कार्क से, ढक्कन से क्लोज कर दिया। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, आफ्टर फ्यू डेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर प्रोड्यूस इन देयर सील्ड बॉटल्स। उस मीट को नेदम ने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद वो जो एक ग्रेवी लिक्विड बना था वो ट्रांसफ़र कर दिया एक अलहदा बॉटल्स में और उन बॉटल्स को ढक्कन से क्लोज कर दिया और उसने देखा कि उसके अंदर काफ़ी मिक़दार में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
प्यूपा प्रोड्यूस हुए। और उसने ऑब्जर्वेशन के तहत कहा कि उस बॉटल्स के अंदर जिसका मुंह क्लोज था, उनमें काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से प्यूपा प्रोड्यूस हुए। इनसे जाहिर होता है, नेदम ने एक्सप्लेन किया, जाहिर किया कि abiogenesis theory is a correct, but biogenesis theory is a wrong, because he once again, believers of abiogenesis excited that life from non-living organisms. After Nedham's experiment and other scientists' posture, Louis Pasteur supported the biogenesis, but it destroyed the theory of abiogenesis. Now we discuss about the Pasteur theory. Before the Pasteur theory, I again explain Nedham theory, Nedham experiment. Nedham's boiled meat in water, poured this grade in bottle and sealed their mouth with cork. Observation: after few days, microorganisms were produced in their sealed bottles. ये बॉटल्स है, इसके अंदर पानी और गोश्त के टुकड़े रखे गए और उनको बॉयल किया गया। बॉयल करने के बाद इसके अंदर जो ग्रेवी सबस्टेंस था, लिक्विड था, वो ट्रांसफ़र कर दिया एक क्लोज बॉटल में, बॉटल के अंदर, और उसके ढक्कन से बंद किया गया। और उनके अंदर काफ़ी दिनों के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होने लगे, जिसे हम प्यूपा कहते हैं। उनसे ये साफ जाहिर हुआ, कंक्लूजन हुआ कि life produced from non-living things, life produced from non-living things. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लोअर्स पास्चर। After the Nedham experiment, another scientist, his name was Pasteur. Pasteur also explain an experiment. He also favored in the biogenesis. Pasteur, this experiment, Pasteur experiment in favor of biogenesis. Pasteur scientist ने बायोजेनेसिस की थ्योरी को फेवर दिया कि जो लिविंग थिंग्स क्रिएट होती है वो लिविंग थिंग्स से क्रिएट होती है। इट मीन्स लाइफ क्रिएट फ्रॉम द लाइफ, बट लाइफ डू नॉट क्रिएट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स से। तो नेदम थ्योरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और अरिस्टोटल के थ्योरी को रद्द करने के लिए रेडी के एक्सपेरिमेंट के तहत पास्टर ने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इन 1864 1864 में लुईस पास्चर explained this experiment. This experiment is called Pasteur experiment. In this experiment, during procedure, he took bottle having long covered S-shaped neck. इसने एक बॉटल सेलेक्ट की और वो बॉटल में एक एस शेप की स्ट्रक्चर में एक कवर शेप की जो नेक लाइक स्ट्रक्चर कवर शेप की एक ट्यूब इसमें इनकी जो बिल्कुल भी एक साइड से बिल्कुल भी कवर थी, यानी बिल्कुल भी एक दूसरे से उनकी जो दीवारें थी, वॉल्स थी, वो कनेक्ट थी। ही एडेड ए फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन।
फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन का मतलब है कि यानी कि खमीरा बनाया, एक लिक्विड बनाई जो जिसमें यीस्ट, शुगर और वाटर को इन्वॉल्व किया और एक पेस्ट नुमा स्ट्रक्चर बनाए, लिक्विड बनाए और वो बॉटल के अंदर डाला। वो क्या था, बॉटल के अंदर डाला एंड लेफ्ट देयर माउथ ओपन, और उसका जो माउथ था वो ओपन खुला छोड़ दिया, ओपन कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, बॉटल कंटेनिंग द यीस्ट इन्फ्यूजन वर बॉयल, जो बॉटल के अंदर जो यीस्ट डाला गया वो बॉयल था, पहले से ही बॉयल करके उसके अंदर डाला गया एंड लेट स्टीम से रिलीज आउट ऑफ नेक ऑफ ईच बॉटल फ्लेक्स, और उसके बाद उसमें से जो स्टीम थी वो निकल रही थी आसानी से बॉटल की बाहर तरफ से। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या हुआ कि नो लाइफ वाज प्रोड्यूस्ड इवन आफ्टर सेवरल डेज because microorganism along with air got stick up in one covered wall glass neck। इसमें जो फ्लाइज थे वो आकर इससे ट्यूब के थ्रू अंदर यीस्ट के तरफ जा रही थी, लेकिन इस ट्यूब की जो कर्व शेप है वो एक जगह से, जहाँ इसकी कर्व शेप है वहाँ से इनकी वाल जो दीवारें थी वो बिल्कुल आपस में मिला गई थी, जिसकी वजह से ये फ्लाइज अंदर आके मुकम्मल तौर पर यीस्ट के अंदर इन नहीं हो पा रही थी, लेकिन एयर अंदर आ भी रही थी और बाहर जा भी रही थी, लेकिन फ्लाइज अंदर नहीं आ रहे थे और इस वाल से स्टिक ऑफ हो रही थी। इसकी वजह से प्रूव हुआ दिस ब्रोकन अप इन वन ऑफ द कर्व्ड नेक एंड saw but no any microorganism produced। फिर पॉस्टर ने क्या कि 48 घंटों के बाद या काफ़ी घंटों के बाद इस ट्यूब को ब्रेकअप किया और बॉटल के अंदर इसने देखा जो यीस्ट था, जो लिक्विड था, उनके अंदर नो प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स, यानी इससे पॉस्टर ने प्रूव किया कि ऑर्गेनाइजम्स जो है, लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस नहीं होती है। एंड ठीक है, तो आखिर में इनका जो कंक्लूजन है वो हम करेंगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ पॉस्चर एक्सपेरिमेंट इज कंक्लूजन। During conclusion, Pasteur experiment proved that no life could be produced if care is taken and no microorganisms reach in yeast. Then commission decide in the favor of biogenesis। इसका मतलब है कंक्लूजन जो लास्ट पॉइंट जो पास्टर ने दी, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया अगर लाइफ कभी भी प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक उसकी केयर न की जाए एंड नो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म रीच इन यीस्ट, जब तक माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से यीस्ट तक यानी लिक्विड तक नहीं पहुंच पाते तब तक के लिए कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनाइजम्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनाइजम्स से ही प्रोड्यूस होते हैं, बल्कि गैर जानदार चीज़ों से जानदार चीज़ें वजूद में नहीं आती। ठीक है, तो फिर पास्चर के एक्सपेरिमेंट को डिसाइड किया गया, फेवर किया गया और बायोजेनेसिस के फेवर में
सही निकला। और पास्टर ने कहा कि लाइफ क्रिएट फ्रॉम द लाइफ बट लाइफ डू नॉट क्रिएट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।